Good morning, student. Myself Chirag Sukani, and I am going to teach you financial management subject. And we will continue our chapter that is dividend policy. And in that there is an Walter model, that is sums on the Walters model. Okay, so fifth sum. The earning per share of a company is what rupees 10. So EPS of the firm is given. EPS of the firm is given, that is rupees 10. Then equity capitalization rate 10 percentage, that is KE. KE is what? 10 percentage. Then internal rate of return on the retained earning is what? 10 percentage. So R is also 10 percentage. Clear? So EPS of the firm is given, cost of equity is given in the R, that is rate of return on the firm's investment is given, that is what? 10 percentage. Use Walters formula. Now, A. What should be the optimum payout ratio of the company? Okay, yani based on this information, what should be the optimum payout ratio of the company? Second question, what should be the price of the share at optimum payout ratio? And the third question, how should this price be affected if different payout, say 80 percentage were employed? Okay, so EPS of the firm is given 10 rupees, cost of equity or equity capitalization rate is given, that is 10 percentage, and the internal rate of return on retained earning is given, that is what? 10 percentage. Now मैंने आपको बोला है how we can identify which type of company by comparing R and K. Okay, by comparing R and K, आपको क्या दिख रहा है in this sum? Cost of equity is 10 percentage and R is what? 10 percentage. So R is equal to KE. Now R is equal to KE. So it is a case of normal firm. And normal firm के लिए क्या होता है? Normal firm के लिए there is no optimum payout ratio. That means payout ranging between 0% to 100%. आप कोई भी लो, कोई भी payout लो, the price of the share remain constant. Okay, so there will be no effect on the price of the share. Okay, so this is a case of normal form. Okay, so conclusion क्या होगा? आंसर ए क्या रहेगा? Since R is equal to K, clear? Now R is equal to K, that is what? 10 percentage is equal to 10 percentage, है ना? Since R is equal to K, so it is a case of normal form. It is a case of normal form. Okay, thus there is no optimum payout ratio. There is no optimum payout ratio, or we can say any payout that is ranging between 0 percentage to 100 percentage will be optimum. Why? Because there will be no effect on price of share. Clear all of you? So in this sum R and K इक्वल है, एंड R and K इक्वल होगा, सो कौन सी टाइप की फॉर्म हो जाएगी? नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी. एंड नॉर्मल फॉर्म का कंसेप्ट क्या है? डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट. ओके, यानी एनी पे आउट और वी कैन से देयर इज नो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉर द नॉर्मल फॉर्म, और वी कैन से एनी पे आउट से 0% से 100%. आप कोई भी पे आउट यूज करो, the price of the shares remains same, so there will be no effect on the price of the share. Clear? So first is what should be the optimum payout ratio? That is any payout ranging between 0% to 100% will be optimum. Clear? Now
सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ शेयर एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। अब यहाँ पे फर्स्ट में आंसर क्या आया, एनी पे आउट रेंजिंग बिटवीन 0 to 100 विल बी ऑप्टिमम। ओके, सो अब कोई भी पे आउट पे प्राइस ऑफ द शेयर्स कैलकुलेट करना है, कोई भी पे आउट पे क्या करना है, प्राइस ऑफ द शेयर्स कैलकुलेट करना है। एग्जांपल मैं यहाँ पे प्राइस ऑफ द शेयर्स कैलकुलेट कर रहा हूं एट द रेट ऑफ 20%, प्राइस ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ 20% पे आउट। ओके, अभी मैं यहाँ पे 20% पे प्राइस कैलकुलेट करा ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के, है ना। ना डी, डी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, ईपीएस के ऊपर, मैंने आपको बोल दिया पहले भी। सो ईपीएस कितना है, ईपीएस 10 रुपीज है ना। सो डी क्या आएगा, 10 इंटू 20%, सो डी क्या आएगा, 2 रुपीज आएगा। सो डी इज 2 प्लस आर 0.10, के 0.10, अर्निंग पर शेयर 10 माइनस डी 2 डिवाइडेड बाई के 0.10। सो 2 का 2 रहेगा प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 0.10 क्या आएगा, 1 आएगा, इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 2 8 डिवाइडेड बाई 0.10। सो 2 का 2 रहेगा प्लस 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाई 0.10। सो 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाई 0.10। ओके, सो 10 डिवाइडेड बाई 0.10 100 आएगा। सो ₹100। ओके, सो कोई भी आप पे आउट यूज करो, आइदर 20% यूज करो, आइदर आप 50% यूज करो, द प्राइस ऑफ द शेयर क्या आएगा, इट रिमेन कांस्टेंट। विल ट्राई विथ अनदर पे आउट। चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि प्राइस ऑफ द शेयर एट 20% पे प्राइस कितना आया, ₹100। नाउ बी ही आंसर, बी क्वेश्चन का ही आंसर, प्राइस ऑफ द शेयर एट कितना लेते हैं, आपकी मर्जी, आप जो लेना है वो। ओके, सो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं प्राइस ऑफ द शेयर एट 50%, प्राइस ऑफ द शेयर एट 50% पे आउट। विल ट्राई, हाँ, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सो फॉर्मूला सेम, P इज इक्वल टू डी ना, मैंने आपको बोला है पे आउट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, ईपीएस के ऊपर। सो डी क्या आएगा, ईपीएस आपका 10 है, और सो 10 का 50% क्या आएगा, 5 रुपीज। सो डी क्या आएगा, 5 प्लस आर 0.10, के 0.10, ई 10 माइनस 5 अपॉन 0.10। ओके, सो फॉर्मूला से यूज किया हम लोग ने। सो डी क्या होगा, 5 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 0.10 1, 10 माइनस 5 5 डिवाइडेड बाई 0.10। सो 5 का 5 रहेगा प्लस 5 1 सा 5 डिवाइडेड बाई 0.10। सो 10 डिवाइडेड बाई 0.10। सो आंसर क्या आएगा, ₹100। ओके, इस आपको क्लियर कट समझ में आया कि for a normal firm there is no optimum payout ratio as such, or we can say any payout ratio ranging between 0 to 100% will be optimum. Okay, so मैंने कैलकुलेट किया वन टाइम 20% पे आउट पे, सो प्राइस ऑफ द शेयर्स 100 रुपीज आया। लाइकवाइज मैंने ट्राई किया प्राइस ऑफ द शेयर एट 50% पे आउट, तो भी प्राइस ऑफ द शेयर्स कितने आए, ₹100। ओके, सो प्राइस ऑफ द शेयर्स रिमेन constant in case of normal form. Clear? The answer over price of the share at the optimum payout ratio. Now see, how should this price be affected if the different payouts say 80% were employed. सबको क्या कैलकुलेट करना है, अभी प्राइस ऑफ द शेयर्स एट 80%। सो आंसर सी, प्राइस ऑफ शेयर at the rate of 80% payout. So same formula, P is equal to D plus R upon K into bracket E minus D
अपॉन के। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या लेना है, डिविडेंड। पे आउट 80% है, सो डिविडेंड कैसे मिलता है, डी इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पे आउट रेशियो होता है ना, पे आउट रेशियो होता है। सो ईपीएस कितना है 10, 10 का 80%, सो डी क्या आएगा 8। ओके, सो डी इज व्हाट 8 प्लस आर 0.10, के 0.10, ई 10 रुपीज है और डिविडेंड 8 रुपीज है, डिवाइडेड बाई के ई 0.10। सो 8 का 8 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 0.10 1, 10 माइनस 8 2 डिवाइडेड बाई 0.10। सो 8 का 8 प्लस 2 1 सा 2 डिवाइडेड बाई 0.10। सो आंसर क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.10, दैट इज ₹100। आया समझ में। सो प्राइस ऑफ द शेयर्स एट 80% भी क्या आया 100। सो अभी आपका कंक्लूजन क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ शुड प्राइस बी अफेक्टेड इफ द डिफरेंट पे आउट रेशियो वर एम्प्लॉयड। ओके, सो ये कौन सी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, और नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, आइदर आप कोई भी पे आउट लो, 80% यूज करो, कुछ भी लो, प्राइस क्या रहेगा सेम। दैट मीन्स एनी चेंज इन द पे आउट रेशियो will have no effect on price of the share. Okay, so conclusion क्या होगा, hence हम लोग ने इंक्रीज किया है ना, तो कंक्लूजन इसके हिसाब से लिखेंगे। हेंस हम लोग ने 20 लिया, 50 लिया था एग्जाम्पल में, फिर बाद में 80 किया ना, हेंस सो 20 से 80 किया, 50 से 80 किया, सो रिजल्ट क्या है, हेंस द इंक्रीज in payout ratio that is 80% किया है ना, the price is same, or we can say the price remain constant। दिख रहा है 100 का 100 ही रहा। ओके, that means any change in payout ratio will have no effect on price of shares for normal form। क्लियर। सो आपका आंसर ओवर। सो कैसे याद रखना है, कंपेयर करना है आर एन के को कंपेयर किया तो आपको क्या पता चला, ये नॉर्मल फॉर्म है, और नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या होता है, देयर इज नो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, और एनी पे आउट रेंजिंग बिटवीन 0% to 80% विल बी ऑप्टिमम, बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द शेयर्स। सो बी में हम लोग ने प्राइस कैलकुलेट किया एट एनी पे आउट। सो फर्स्ट मैंने ट्राई किया 20%, सेकंड मैंने ट्राई किया 50%। सो प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या, दोनों में सेम। अभी थर्ड क्वेश्चन पूछा 80% आप यूज करोगे तो हाउ प्राइस अफेक्टेड होगा। सो 80% भी प्राइस क्या आया, ₹100 ही आया। सो कंक्लूजन क्या हुआ, एनी चेंज इन द पे आउट रेशियो विल हैव नो इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ द शेयर्स इन केस ऑफ नॉर्मल फॉर्म। क्लियर, बाय। नाउ नेक्स्ट जो 6 सम है आप नोट्स में डिक्टेट कर लेना, अगेन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।